ہنگامی اجلاس آج طلب، گوگل کا چین میں تمام دفاتر عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان، امریکی صدر کو وائرس سے متعلق بریفنگ، ٹرمپ نے کہا صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ more than 700 اسٹوڈنٹس ہیں جو ووہان سٹی میں ہیں، اور یونیورسٹیز جو 3-4 بڑی یونیورسٹیز ہیں ہوبئی پروونس کی، اس میں وہ یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ سو ہماری اپیل یہ ہے اس گورنمنٹ سے کہ پلیز ہمارے لیے کچھ کریں اور ہمیں یہاں سے نکالیں۔ میں دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کریں ہمیں یہاں سے نکالیں۔ فرسٹ یو سیڈ ٹو us, the government official of Pakistan, they said to us that cooperate with the Chinese government. Yes, we are cooperating, but now our university send us email that we can leave the China. So please take any action and do something for us. چین کے شہر ووہان میں مقیم 4 پاکستانی طلباء میں کرونا وائرس کی تصدیق، پاکستانی طلباء کی نقل و حرکت یونیورسٹی ہاسٹل تک محدود، حلال خوراک کے حصول میں مشکلات کا سامنا، زندگیوں کو خطرہ ہے، حکومت پاکستان ہمیں ریسکیو کرے، طلباء کی جانب سے ویڈیو پیغام میں اپیل۔ پاکستانیوں کی واپسی کا فیصلہ حکومت کرے گی، ترجمان دفتر خارجہ نے طلباء سے رابطے کے لیے ہاٹ لائن نمبر جاری کر دیا، بلوچستان میں مختلف پروجیکٹس پر کام کرنے والے چینی باشندوں کی اسکریننگ کا فیصلہ، خصوصی ٹیم تشکیل، آئسولیشن وارڈز قائم۔ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے، وزیر اعظم عمران خان کی معاشی ٹیم کو ملاقات میں ہدایت، معاشی ٹیم کی وزیر اعظم کو ملک میں مہنگائی کی صورتحال پر بریفنگ، وزیر اعظم نے کہا اگر کابینہ اجلاس میں مہنگائی کی وجوہات نہیں بتا سکتے تھے تو وہ وجوہات آج بتائیں، مہنگائی مزید نہیں بڑھنی چاہیے۔ نئے آئی جی سندھ پر اتفاق کے بعد پھر سے ڈیڈ لاک، وفاق کا سندھ حکومت سے کوئی نیا نام دینے پر اصرار، سندھ حکومت دیے گئے 5 ناموں پر ڈٹ گئی، نیا نام دینے اور گورنر سندھ سے مشاورت سے متعلق وفاقی کابینہ کی تجویز مسترد، معاملے پر گورنر عمران اسماعیل کی اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے مشاورت۔ وفاقی حکومت کا آئی جی سندھ کلیم امام کو سیکورٹی نارکوٹس لگانے کا فیصلہ، کلیم امام نے گزشتہ روز وزیر اعظم سے ملاقات میں اپنا دل کھول کر رکھ دیا، کہا صوبائی وزراء کے خلاف ایکشن لینے پر سندھ حکومت میرے خلاف ہو گئی، ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، اپنا کام نیک نیتی سے کرتا ہوں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 4 بجے ہوگا، اسپیکر اسد قیصر نے شاہد خاقان عباسی، خورشید شاہد، سعد رفیق اور احسن اقبال کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے، اجلاس میں ایف اے ٹی ایف ہدایت کی روشنی میں قانون سازی اور نیب اصلاحات سے متعلق اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، اپوزیشن آٹا چینی بحران اور مہنگائی کے ایشوز ایوان میں اٹھائے گی۔ لاہور، اوکاڑا، ساہیوال سمیت پنجاب کے متعدد شہروں میں دھند کے ڈیرے، موٹر وے M5 جلال پور پیروالا سے ملتان تک بند، ملتان تک خانیوال موٹر وے پر بھی ٹریفک معطل، دھند کے باعث فلائٹ اور ٹرین آپریشن متاثر۔ ملک بھر میں سردی کی شدت میں پھر سے اضافہ، اسکردو -15 کے ساتھ سرد ترین مقام، استور -10، کلات -6، ہنزا مالم جبہ -5، کوئٹہ -3، مری -1، اسلام آباد 3، پشاور 4، لاہور 8 اور کراچی میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ بھارت کی عوام مودی کے پاگل پن کو شکست دیں، وفاقی وزیر فواد چودھری کا ٹویٹ، کہا ریاستی انتخاب میں شکست دیکھ کر مودی نے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی شروع کر دی ہے، کشمیر شہریت کے قانون اور گرتی ہوئی معیشت نے مودی جی کے اوسان قطع کر دیے، فواد چودھری نے کہا کہ بیانات سے مودی الیکشن نہیں جیت سکتے۔
बलूचिस्तान की आवाम का एहसास महरूमी दूर करेंगे, उन्हें मुल्क के दीगर तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाना वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा वज़ीर आला जाम कमाल के साथ बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए आज़म का वाज़ेह इजहार है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। बलोच अवाम की खुशहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मरासला लिखकर उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स 3 दिन में तलब की हैं। मरासले के मुताबिक रिपोर्ट फराहम न करने की सूरत में मौजूदा हक़ाइक़ की रोशनी में हुकूमत नवाज शरीफ को मजीद रिलीफ देने या ना देने से मुतालिक फैसला करेगी। मजीद बात करेंगे फैसल इब्राहिम से। जी फैसल। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को फैसला जारी किया है। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ से मेडिकल रिपोर्ट्स तलब कर ली है। नवाज शरीफ की फराहम करदा रिपोर्ट्स पर पंजाब हुकूमत तौसीक का फैसला करेगी। नवाज शरीफ की 23 दिसंबर की रिपोर्ट्स जो है वो महमूद एजाज की सरबराही में कायम मेडिकल बोर्ड को भिजवाई गई थी। पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की फराहम करदा दस्तावेजात को नाकाफी करार दिया। ख्वाजा हारिस को भी 6 जनवरी को रिपोर्ट्स फराहम करने की हिदायत की गई। नवाज शरीफ को 3 दिन के अंदर रिपोर्ट्स फराहम करने की हिदायत की गई है। रिपोर्ट्स फराहम न करने की सूरत में मजवज़ा हक़ाइक़ की रोशनी में हुकूमत अपना फैसला देगी कि नवाज शरीफ की जमानत में तौसीक करनी है या नहीं। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन करते हुए 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासल कर दिया, जबकि दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक शहीद जवानों में सिपाही मोहम्मद शमीम और सिपाही असद खान शामिल हैं। अब तक की आपको अहम खबर दे रहे हैं, ये ऑपरेशन किया गया है ISPR की जानिब से। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान दत्ता खेल में ये खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया, 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासल किया और दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 जवान शहीद भी हुए। शहीद जवानों में सिपाही मोहम्मद शमीम और सिपाही असद खान शामिल हैं। रात को निकल गया है। कोरोना वायरस से मुतासरा चीनी शहरियों की अमवात की तादाद 170 तक जा पहुंची है। 7,771 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। 1 करोड़ से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल वुहान शहर में सन्नाटे का राज है। गूगल ने चीन में तमाम दफातर आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान किया है। मुहलक वायरस दुनिया के दीगर 18 ममालिक तक फैल गया। इन ममालिक में अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक भी शामिल हैं। आलमी इदारे सेहत ने पूरी दुनिया को अलर्ट रहने की हिदायत की है। WHO ने हंगामी इजलास आज तलब किया है। अमरीकी माहिरीन की तरफ से सदर डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना वायरस से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। ट्रंप ने कहा है कि सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली यिंगजी यूनिवर्सिटी के तालबा मारिया भी कोरोना वायरस के बायस चीन के सूबे हुबाई में फंस गई हैं और तालिबा ने हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील की है। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ हफीज मक्सी से। हफीज, जो ये तालिबा है मारिया, किस तरह की मुश्किलात का सामना है उनको और क्या अपील की है उन्होंने हुकूमत से? जी बिल्कुल, ये चीन में कोरोना वायरस से जो शुरू हुआ है उसमें हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली तालिबा मारिया भी जो है चीन में फंसी हुई है। और जबकि आपको पता चले कि चीन के हुबई सूबे की यंगजी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हैं और इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि हम कोरोना वायरस की वजह से बुरी तरह यहाँ पर फंसे हुए हैं, जबकि हम अपने घरों में बंद होकर रह गए हैं। खाने पीने की अशिया हासिल करने में भी काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना है। जबकि हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि हमें रेस्क्यू किया जाए। और इनका मजीद कहना है कि चीनी हुकूमत दावा तो कर रही है कि वो सूरत हाल पर कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये वायरस जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसके बायस जो पाकिस्तानी तलबा है वहाँ पर और चाइनीज और दीगर जो है ममालिक से जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बुरी तरह फंसे हुए हैं और ये एक वबा की सूरत हाल अख्तियार कर गया है वायरस के तहत। जो है इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर रेस्क्यू किया जाए। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए हफीज। खतरनाक कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वफाकी महकमा सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और चीन से रैपिड टेस्ट किट जल्द पहुंच जाएगी। बेनजीर भुट्टो अस्पताल में 20 बिस्तरों का आइसोलेशन वार्ड और 6 बिस्तरों पर मुश्तमिल इंतहाई निगहदाश्त यूनिट भी तैयार कर लिया गया है। रावलपिंडी से रिपोर्ट करेंगे सुल्तान शाह।
कोरोना वायरस को न वीजे की जरूरत और न ही उसकी कोई सरहद। चीन और पाकिस्तान के लोगों का एक दूसरे के मुल्कों के सफर के बाइस वायरस मुल्क में मुंतकिल होने का खदशा बढ़ गया। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उमर कहते हैं कि शुमाली इलाकों कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा से लोग अलाइड अस्पतालों में आते हैं। हमने बेनजीर भुट्टो अस्पताल में 20 बिस्तरों का अलग वार्ड और 4 बिस्तरों का ICU बना दिया है। होली फैमिली में 80 बेड मुख्तस हैं। 2 अस्पतालों में इमरजेंसी कोरोना काउंटर भी कायम किए गए हैं। पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट ने गाइडलाइन दी है, उसके मुताबिक हमने फौरी तौर पे बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल में एक 20 बेड का वार्ड तैयार किया है, जहाँ ये पेशेंट आइसोलेट होंगे, उनका एडमिट होंगे और एक हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो है 6 बेड्स का फौरी तौर पे डेडिकेटेड बना दिया गया है। डॉक्टर उमर ने बताया कि कोरोना स्वाइन फ्लू से खतरनाक वायरस है, जिससे मरीज की मौत का खदशा बढ़ जाता है। कोरोना वायरस की अलामात में मरीज को तेज बुखार, खांसी और सीने में दर्द के साथ सांस लेने में दुश्वारी होती है। शहरियों को इन अलामात में फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। जो वायरस है इसकी 3 बड़ी अलामत ये है कि इसमें मरीज को बुखार होता है, उसको खांसी आती है, उसको सीने में दर्द होता है और सांस की तकलीफ होती है। ये 4 इसके मेन सिम्टम्स हैं। इसीलिए जब मरीज एयरपोर्ट पे आ रही है तो उसका सबसे पहले टेम्परेचर दिया जाता है, तो उसको स्कोर किया जाता है कि इसमें अगर बुखार है, फिर बाकी उसकी हिस्ट्री और बाकी जो तशखीस के लिए उसको टेस्ट दिए जाते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर उमर का कहना है कि एहतियाती तदाबीर से कोरोना वायरस से बचाव मुमकिन है। शहरियों को अपने और दूसरों के लिए एहतियात बरतना होगी। कैमरामैन ताहिर मुगल के साथ सुल्तान शाह, रावलपिंडी। अब तक। चीन में कोरोना वायरस के बाइस बदीन से ताल्लुक रखने वाली मेडिकल की तालबा कैफुल उरा वुहान की यूनिवर्सिटी हॉस्टल में महसूर हैं और तालबा के अहल खाना कैफुल उरा की खैरियत के हवाले से फिक्रमंद है। नुमाइंदा अब तक राजा शकील इस वक्त उनके अहल खाना के साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चाइना में मेडिकल की तालिब इल्म कैफुल वरा कमरानी के अहले खाना के साथ, जो मेडिकल की तालिब इल्म है और चाइना के शहर वुहान में इस वक्त कोरोना वायरस के बायस वो हॉस्टल में महसूर है। उस समेत पाकिस्तान के कई तालिब इल्म जो और बदीन के 30 से ज़ायद तालिब इल्म वहाँ पर जो ज़ेर तैलीम है वो हॉस्टल में महसूर है। उनके अहले खाना के साथ कैफुल वरा के अहले खाना के साथ मैं मौजूद हूँ। उनकी वालदा से बात करते हैं कि उनका रब्ता उनकी बेटी से हुआ है, वहाँ की सूरत हाल पे क्या आप बताएँगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपील करती हूँ कि बराए मेहरबानी में हमारी हेल्प की जाए, क्योंकि मेरी बेटी के पास वहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन लोगों ने इस कमरे को बंद कर दिया है, वो सील हो गया है सारा। इसलिए मैं आर्मी सबको हमने अपील की है, कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर रहा। और मैं अभी आर्मी चीफ को अपील कर रही हूँ क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, उनके भी। आप क्या बताएंगे इसी हवाले से? यही है कि हम भी जैसे वहाँ पर वो सारे बच्चे फंसे हुए हैं, हम भी आर्मी चीफ को अपील करते हैं। कुछ दिनों से, काफ़ी दिनों से हम पूरी हमारी फैमिली डिस्टर्ब लगी हुई है। हमारे बच्चे हैं, लाजमी दूसरों के भी बच्चे हैं, उनको भी हम आर्मी चीफ से अपील भी करते हैं कि आप कुछ कदम उठाएं। उनको पाकिस्तान के बच्चे हैं, पाकिस्तान लाने में आप भी कुछ कदम उठाएं। यहाँ पे उनके अहले खाना के साथ मेरी बात हुई। उनकी वालदा गम से निढाल है। उनका कहना है कि सिफारती तौर पर भी पाकिस्तान जो है कोशिश करे इनके जो बच्चे हैं और खुसूसन कैफुल वरा जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी हॉस्टल में महसूर है, उनको पहले तो खाने की अशिया जो है वो फराम करने के लिए एम्बेसी जो है वो अपनी कोशिश करे और आर्मी चीफ खुद इस मामले का नोटिस लेकर जो पाकिस्तानी तालिब इल्म वुहान में कोरोना वायरस के बायस महसूर है, उनको पाकिस्तान वापस लाने के लिए आर्मी चीफ अपनी कोशिश करे और हुकूमत पाकिस्तान भी अपना किरदार अदा करे ताकि ये बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान वापस आ सके और अपने खानदान के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार सकें। जी, वज़ारत ख़ारजा ने कोरोना वायरस से शदीद मुतासरा चीनी शहर वुहान में फंसे पाकिस्तानी तलबा के लिए हॉटलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी जामियात ने तलबा को मुफ्त खाने और अद्वियात की फराहमी की यकीन दहानी कराई है। हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक पाकिस्तानी तालिब इल्मों को वापस लाने का कोई फैसला नहीं किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वुहान में फंसे तलबा को वापस लाने के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा।